Hello dear students and viewers, welcome back again Laksh classes. Today in this lecture I would like to discuss about the structure of prokaryotic cell. As the name indicated, prokaryotic, the word prokaryotic is made up of two words. In Greek words, pro means primitive and karyon means nucleus. So prokaryotic cells are known as those cells. Their nucleus is very primitive. प्रोकैरियोटिक सेल उन कोशिकाओं को कहते हैं जिनका केंद्रक बड़ा ही प्राथमिक स्तर का होता है, जिनका केंद्रक बड़े ही निम्न स्तर का होता है, उनको प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जाना जाता है. अंडर द हेडिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है. The brief information regarding the prokaryotic cell is that prokaryotic cells are known as those kind of cells. Their nucleus is very primitive. Their nucleus is very early. In some books, it is mentioned that there is no nucleus-like structure in prokaryotic cell. In some books, it is mentioned that in prokaryotic cells the nucleus is very primitive. So it is called as prokaryotic cells. They are relatively simple cell having only cell membrane. The membrane bound organelles such as endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, chloroplast, lysosome, these are all cell organelles are absent in the prokaryotic cell. Well formed nucleus is also absent. The hereditary material is highly coiled. There is a single circular DNA molecule that is lying naked in the cytoplasm. Because there is the absence of histone protein, there is the absence of the nuclear membrane. So the genetic material, that is the DNA, that is lying naked in the cytoplasm, and such kind of the nucleus is called as a nucleoid. Popular example is the blue-green algae, Mycoplasma, Pleuropneumococci. These are the example of prokaryotic cells. This is the structure of prokaryotic cell. The diagram which we are going to explain here. This is the structure of the prokaryotic cell. First one, the outermost covering, that is known as outer membrane. First, this is the outermost covering, that is the number one, that is known as outer membrane. Second one is known as cell wall, that is the second. And third one is the plasma membrane that folds many times, that is the third layer. So when we are going to observe the structure of the prokaryotic cell, then it is very clear that there are three layers. If you are going to observe the structure of plasma membrane, then you can observe that the prokaryotic cell is made up of a trilaminar structure. Trilaminar structure means that is made up of three layers. First one is the outermost layer, that is the outer membrane. This outer membrane or outer layer, outer membrane forming the capsule. Suppose that this is the structure of bacterial cell, because bacteria comes under the heading of the example of prokaryotic cells. So the outer membrane, that is also known as capsule, that is known as bacterial capsule, and this capsule is made up of glycocalyx. Glyco means glycogen and calyx means branch. This capsule or this outer layer, that is made up of glycocalyx. यह एक ग्लाइकोकाइलिक्स का काम करती है, पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, ग्लाइकोजन की ब्रांच से बनी होती है. सर्व एज इम्यूनोजेनिक लेयर, यह प्रतिजनकता, रोग क्षयजनकता परत की काम करती है. एंड इम्यूनोजेनिक लेयर का मतलब रिलेटेड टू द इम्यूनिटी. एंड दिस कैप्सूल इज ए स्लाइमी कैप्सूल. स्लाइमी का मतलब होता है श्लेष्मिक कैप्सूल होता है. दैट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड, serves as additional protective covering
यह एक एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। आई यू नो इट वेरी वेल। दिस कैप्सूल दैट इज नोन एज स्लाइमी कैप्सूल दैट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड सर्व्स एज एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग। कुल मिलाकर के जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, ग्लाइकोजन की ब्रांच से बनी होती है। इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, इम्यूनोजेनिक लेयर होती है। रोग क्षयजनकता यानी प्रतिजनकता जिसे हम कहते हैं, इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है। कुल मिलाकर इसका काम है प्रोटेक्शन। इसको हम कैप्सूल भी कहते हैं। इसको ये स्लाइम कैप्सूल है जो पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, अतिरिक्त सुरक्षात्मक कवरिंग का काम करती है। और क्या करती है? इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग इंगल्फ्ड, या बैक्टीरिया को जो है निगलने से सुरक्षा प्रदान करती है। इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग इंगल्फ्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। अगर कोई एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो है इसको इनगल्फ कर रहे हैं तो बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करती है। आगे है ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे है सेकेंड लेयर। तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन है, सेकेंड है सेल वॉल। सेल वॉल इज दैट इज मेड अप ऑफ टिकोइक एसिड दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये सेल वॉल भी पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसमें टिकोइक एसिड पाए जाते हैं, रिजिड होती है, 100 से 200 एंगस्ट्रॉन की होती है और पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। थर्ड वन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मिंग मेनी टाइम्स फॉर्मिंग द मीजोसोम। ये थर्ड लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेल मेम्ब्रेन। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेल मेम्ब्रेन देखिए जगह जगह फोल्ड होती है। ऐसे आ करके देखिए यहाँ फोल्डिंग है, फिर यहाँ से यहाँ कर यहाँ फोल्डिंग है, फिर यहाँ फोल्डिंग है, यहाँ फोल्डिंग है, यहाँ फोल्डिंग है, यहाँ फोल्डिंग है। सो द इनर मोस्ट लेयर दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड्स मेनी टाइम एंड फॉर्मिंग द मीजोसोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बहुत जगह जगह पे फोल्ड हो जाती है और बना लेती है मीजोसोम। एंड दिस मीजोसोम इज द सेंटर where the ATP synthesis occurs by the process of anaerobic respiration। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ATP की सिंथेसिस जो होती है उसी तरह से इस मीजोसोम में ATP की सिंथेसिस होती है, दैट इज द मीजोसोम। एंड these are the ribosome, that is the 70s ribosome, that is the 70s ribosome that is scattered in cytoplasm and the space between the cell wall and outer layer that is known as periplasmic space and this is known as flagellum. This is the cytoplasm. In the center you can observe the single circular double stranded DNA molecule and this single circular double stranded DNA molecule they are lying naked in the cytoplasm. So such kind of nucleus is called as nucleoid. So we have keeping in mind that under the heading of prokaryotic cells their nucleus is very primitive. There is a single circular double stranded DNA molecule is found and that is scattered lying naked in the cytoplasm. So such kind of the nucleus is called as nucleoid. This is known as nucleoid here. This is known as nucleoid and this is known as cytoplasm where the 70s ribosomes are scattered. This is the structure of the prokaryotic cell. एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, एकदम क्लियर कट समझ लीजिए। सबसे बाहर होती है आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, नंबर थर्ड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फोल्ड करके कई जगह मीजोसोम बनाती है। इसके बाद साइटोप्लाज्म में फ्रीली 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। फ्लैजेला बाहर निकला हुआ है, सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल होता है। चूँकि न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर कोई नहीं होता है, देयर इज नो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। So all the genetic material, all comments there is only a single DNA molecule that is found in the circular double stranded DNA molecule is lying naked in the cytoplasm and such kind of the nucleus is called as nucleoid. This is the structure of prokaryotic cells. Okay, some information regarding this, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। जहाँ तक इसके बारे में है प्रोकैरियोटिक सेल,
अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बाद इसके थोड़ा डिटेल आप नोट कर लीजिए। अंडर द हेडिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, as the name indicated, prokaryotic are prokaryotes. Pro means primitive or early, karyon means nucleus. So prokaryotic cells are known as those cells their nucleus is very primitive. These are relatively simple cell. ये सापेक्ष रूप से बहुत साधारण कोशाएं होती हैं। हैविंग ओनली सेल मेम्ब्रेन, केवल इसमें कोशा में केवल हैविंग ओनली सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है इसमें केवल सेल माने कोशा, मेम्ब्रेन माने झिल्ली, केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जितने भी होते हैं, उस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली का मतलब होता है झिल्लियों से बधी हुई जितने भी कोशिकांग होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, ये सब एब्सेंट होते हैं। वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस इज आल्सो एब्सेंट, ये सब मैं बहुत पहले ही बता दिया था, स्टार्टिंग में ही बताया था। बहुत अच्छे ढंग से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है अनुपस्थित होता है। जितने भी हेरिडेटरी मटेरियल होते हैं इज हाईली क्वाइल्ड। हेरिडेटरी मटेरियल जो होते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, बहुत ज़्यादा कुंठलित होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो लाइंग मैंने पढ़ा होता है नेक्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वैसे ही पढ़ा होता है, बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन, इट इज़ फॉर्म डीएनए एलोन, केवल डीएनए से बनता है। और इस तरह के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। पॉपुलर एग्जाम्पल इज द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, प्लेरोनोमोकोक्सी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रोकैरियोटिक cell. So that's all about the prokaryotic cell. Now in the next lecture we will discuss about the eukaryotic cells. So thanks to all of you watching the video. Thank you.